টাইমটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো। অবৈধ বাংলাদেশী এইবাৰ সাৱধান, কাৰণ অবৈধ বাংলাদেশীক লৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এইবাৰ অন্তিমটো সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। এটাকৈ বাংলাদেশী বিচাৰি উলিওৱা হ'ব আৰু অসমৰ পৰা প্ৰতিটো বাংলাদেশীক বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব। কোনো কাৰণত অসমৰ ভূমিত বাংলাদেশীক থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব। লাখ লাখ একৰ ভূমি অবৈধ বাংলাদেশীয়ে অসমত দখল কৰি আছে। গতিকে সকলো ভূমি এতিয়া বেদখল মুক্ত কৰিব লাগিব, বাংলাদেশীৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগিব সমগ্ৰ অসম। আৰু এনেধৰণে ডিব্ৰুগড়ত আজি এই সংকল্প লৈছে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰু অবৈধ বাংলাদেশীক সকিয়নি দি ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লৈছো এই মুহূৰ্তত টাইম 8 বিগ ব্ৰেকিং। অবৈধ বাংলাদেশী সাৱধান, অবৈধ বাংলাদেশী এবাৰ নিস্তাৰ নাই। অবৈধ বাংলাদেশী এটাকৈ বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব অসমৰ পৰা এটা বাংলাদেশী বহিষ্কাৰ বিচাৰি কৰা হ'ব বহিষ্কাৰ। আৰু দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ সকিয়নি, অবৈধ বাংলাদেশী সকিয়নি দি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এয়া ঘোষণা, এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 1,24,000 একৰ ভূমি বাংলাদেশীৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ দায়িত্ব বিজেপিৰ। অসমৰ ভূমিৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী শেষ সকিয়নি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ত বাংলাদেশী বহিষ্কাৰ শপত ললে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। আৰু তেনে অৱস্থাত এই ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে অবৈধ বাংলাদেশী সকিয়নি প্ৰদান কৰি দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে অন্তিমটো ঘোষণা। আমি পুনৰ জনাইছো এয়া ডাঙৰ খবৰ। আজি দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আহিছে অসমলৈ। অসমত আজি ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিছে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু আজি ডিব্ৰুগড়ত জনসাধাৰণক কেইবাটাও উপহাৰ প্ৰদান কৰিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিধানসভাৰ দ্বিতীয়টো চৌহদ ডিব্ৰুগড়ত আজি নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানীলৈ পৰিণত হৈছে। আৰু অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানীত উপস্থিত হৈয়ে আজি এই বাংলাদেশী বহিষ্কাৰ সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। ৰাজ্যত বৰ্তমানো যিহেতু বাংলাদেশী বহিষ্কাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে, এফালে অবৈধ বাংলাদেশীয়ে চৰকাৰী যি ভূমি দখল কৰি আছে, খিলঞ্জীয়াৰ যি ভূমি দখল কৰি আছে, প্ৰতি টুকুৰা ভূমিত চলিছে উচ্ছেদ অভিযান। আৰু আনহাতে অবৈধ বাংলাদেশীক বিচাৰি প্ৰতিদিনে চলি আছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উচ্ছেদ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অভিযান। আৰু তেনে অৱস্থাত আজি পুনৰ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে অসমত উপস্থিত হৈ 1,24,000 একৰ ভূমি বাংলাদেশীৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগিব। এতিয়াও আছে, বহু বাংলাদেশী বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল, বহু বাংলাদেশীৰ পৰা উচ্ছেদ, বহু বাংলাদেশীৰ বাসগৃহত চলোৱা হ'ল উচ্ছেদ। কিন্তু এতিয়াও বহু স্থানত আছে বহু বাংলাদেশী। কিন্তু এইসকল বাংলাদেশী এতিয়া সাৱধান, এটাকৈ বিচাৰি উলিওৱা হ'ব বাংলাদেশী। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে যিহেতু দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈকে লিখিত ৰূপত নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছিল প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। আৰু ঠিক তেনেধৰণে অসমত এয়া গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সেই সকিয়নি অবৈধ বাংলাদেশীলৈ। এটাও বাংলাদেশী থাকিব নোৱাৰিব অসমত। সম্পূৰ্ণৰূপে বাংলাদেশী মুক্ত অসম গঢ়িব আৰু বিজেপি চৰকাৰে ইয়াৰ দায়িত্ব ল'ব। আৰু সেই সকিয়নি অবৈধ বাংলাদেশীলৈ সেই সকিয়নি দি দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এয়া ডাঙৰ মন্তব্য। আৰু এই মুহূৰ্তত পোনে আমি দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আছে, মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। आसाम में घुसपैठ होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक घुसपैठियों को चुन कर असम के बाहर हम निकालेंगे। ये घुसपैठिया किसी भी तरह से असम और देश का भला नहीं कर सकते। हमारे सीमित संसाधन हैं, हमारे गरीबों का अधिकार घुसपैठिया छीनते हैं। हमारे
डेमोग्राफी को बदल रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मित्रों, एक घुसपैठिया इन्होंने श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था और काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों ने शिकार कर 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 हमारे गैंडों को खत्म करने का काम किया है। आज आसाम की जनता को मैं अपील करने आया हूं, ये जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन है, इसको अगर आपने रोका नहीं तो आसाम आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत में आएगा। और जनसांख्यिकी का परिवर्तन, घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर। भाइयों बहनों, आसाम की सरहदें घुसपैठियों के लिए खुली थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हेमंत विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने। मोदी जी और आसाम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को आसाम की सरहदों में आना बंद कर दिया है। अब घुसपैठ नहीं होती है आसाम में, परंतु जो आ गए हैं उनको भी बख्शना नहीं है। चुन चुन कर बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आसाम में घुसपैठ होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं आज आसाम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर हम निकालेंगे। ये घुसपैठिया किसी भी तरह से आसाम और देश का भला नहीं कर सकते। हमारे सीमित संसाधन हैं, हमारे गरीबों का अधिकार घुसपैठिया छीनते हैं, हमारे डेमोग्राफी को बदल रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मित्रों, एक घुसपैठिया इन्होंने श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था और काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों ने शिकार कर 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 हमारे गैंडों को खत्म करने का काम किया है। आज आसाम की जनता को मैं अपील करने आया हूं, ये जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन है, इसको अगर आपने रोका नहीं तो आसाम आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत में आएगा। और जनसांख्यिकी का परिवर्तन, घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर। भाइयों बहनों, आसाम की सरहदें घुसपैठियों के लिए खुली थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हेमंत विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने। मोदी जी और आसाम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को आसाम की सरहदों में आना बंद कर दिया है। अब घुसपैठ नहीं होती है आसाम में, परंतु जो आ गए हैं उनको भी बख्शना नहीं है। चुन चुन कर बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आसाम में घुसपैठ होना चाहिए क्या?
अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर असम के बाहर हम निकालेंगे। ये घुसपैठिया किसी भी तरह से असम और देश का भला नहीं कर सकते। हमारे सीमित संसाधन हैं, हमारे गरीबों का अधिकार घुसपैठ